Yeah, please go ahead, Before Neeraj. Pramod sir starts the session, good morning participants. Hope you have enjoyed yesterday's session for finance and non-finance, and probably you have gone through your suppliers' financials. So I request to all the participants, take the use best out of this training. Ask as many as doubt you have in your mind regarding the how the a supplier sitting on a big fat. This program is give you the insight how we should read these three statements and make our judgment when supplier call is genuine and where we need to pitch in. So Pramod sir, I think you can take us through all the yesterday. I think you have taken through us the profit and loss statement. So we will do some recap and then start the session. Thank you, sir. Thank you so much, Neeraj. Thank you once again for again setting the tone for today's session. And good morning to all of you, and heartiest welcome to this session. We would continue from where we left yesterday. Today, our plan is to cover how to read a balance sheet and how to achieve efficient management of working capital. So this is the plan that we have for today. Uh, as always, let me start today's session also with a small anecdote as to why finance is important and how finance is used, or how the numbers are used for the purpose of decision making, how the numbers are used for the purpose of problem solving. Let me share this anecdote with all of you. Once there was a gentleman, हिंदुस्तान के किसी गांव में एक प्रौढ़ पुरुष थे, एल्डरली जेंटलमैन, एंड उन्होंने 100 साल कंप्लीट किए. ही बिकेम द एज ऑफ 100 ईयर्स, और 100 साल की उम्र हो गई उनकी. उनको एक ही शौक था, और वो शौक था घोड़ों का. ही वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. 100 साल की उम्र हो गई और कुछ दिन के बाद वो चल बसे. तब वो चल बसे तो गांव के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी वसीयत छोड़ी पीछे लिख के. ही रोट हिज विल एंड ही लेफ्ट हिज विल बिहाइंड. एवरीबॉडी वाज वंडरिंग कि विल में क्या लिखा होगा. तो उनको क्रेमेटोरियम लेके गए, क्रेमेशन किया, सब लोग घर पे लौटे, और घर पे लौट के एवरीबॉडी वाज क्यूरियस टू नो दैट व्हाट हैज़ ही लेफ्ट बिहाइंड. तो जो घर के जो लोग थे उन्होंने लॉयर को बुलाया और लॉयर से कहा कि सर, ये मेरे जो पिताजी हैं वो ये वसीयत छोड़ के गए हैं, प्लीज़ रीड इट आउट एंड टेल अस एज टू व्हाट हैज़ ही लेफ्ट बिहाइंड फॉर ऑल ऑफ अस. एज आई सेड, द ओल्ड मैन वॉज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. तो जब वकील ने उनकी वसीयत खोली तो ही टोल्ड एवरीबॉडी दैट द ओल्ड मैन हैज़ लेफ्ट हिज हॉर्सेस बिहाइंड. और उन्होंने लिखा है ये वसीयत में, एंड ही सेड, सबसे पहले द ओल्ड मैन हैज़ रिटन दैट ऑल द हॉर्सेस दैट आई हैव, जितने भी घोड़े मेरे पास में हैं, 50% ऑफ द हॉर्सेस गिव इट टू माई वाइफ. तो जैसी वाइफ को मालूम पड़ा, वाइफ वॉज वेरी हैप्पी. शी सेड, ऑल राइट, the old man has left horses, half of the horses for me. She was very happy. And then the lawyer says, in the next line, the old man has written that of the remaining horses, give 50% horses to my son. Son was very happy. He said, okay, father has left horses for me, and he was also very happy. And then the lawyer says, then in the third line, the old man has written, the remaining horses, divide them equally between two of my nephews. So the nephews were happy. Everybody was very happy. Mother was happy, son was happy, wife was happy, son was happy, and the nephews were very happy. So then the lawyer said, okay, now that I have come, let me also do the distribution of the horses. So he sent someone to the stable. तो एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और उसको कहा कि देख,
मालूम करके आओ कितने हॉर्सेज हैं, अभी उनका बंटवारा करके मैं चला जाऊंगा, वकील ने कहा। तो वो आदमी जितनी स्पीड से दौड़ता हुआ गया, उससे डबल स्पीड से दौड़ता हुआ लौट के आया और बोला प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो वकील ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम। बोले सर मैं घोड़े गिने हैं और दादाजी ने जो घोड़े छोड़े हैं वो 19 हैं। ही हैज लेफ्ट 19 हॉर्सेज बिहाइंड हिम। And now the Vakil also started shouting problem, 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 problem. And everybody got shocked because if the horses that the old man had left behind were 19, then how do you divide them? How do you divide them 50%? How do you give 50% to wife and things and to the son and to the nephews? Everybody was confused and did not know what to do. तो वो सारे के सारे घर के लोग और जो इकट्ठे बाहर के लोग इकट्ठे हुए थे, वो सारे के सारे अपने सिर पर हाथ रख के बैठे हुए सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। एंड सडनली एन ओल्ड मैन वॉक्स इन एंड दैट ओल्ड मैन कम्स टू द सन ऑफ द जेंटलमैन हु पास्ड अवे। और उन्होंने उसको आके बोला कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, आई एम ए फ्रेंड ऑफ योर फादर, और मेरी दोस्ती आपके पिताजी के साथ में बहुत मजबूत थी। आवर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रांग दैट वॉट बिलोंग टू योर फादर बिलोंग टू मी एंड वॉट बिलोंग टू मी बिलोंग टू योर फादर। हमारी दोस्ती इतनी मजबूत थी। सो ही सेड ओके सन, डोंट वरी, योर फादर हैज लेफ्ट 19 हॉर्सेस, इज फाइन, आई हैव गॉट वन हॉर्स विच आई ओन, and as I said, what belonged to your father belonged to me, what belonged to me belongs to your father. So ये घोड़ा आप ये समझिए, मेरा जो घोड़ा है कि वो आपके पिताजी का घोड़ा है, और आप अपनी प्रॉब्लम सुलझा लीजिए and then I'll go home. Everybody was very happy because suddenly the number of 19 horses became 20. So they said, all right, now we can do the division. So immediately उन्होंने क्या किया, 10 घोड़े उसमें से निकाल के वाइफ को दे दिए। वाइफ वॉज वेरी हैप्पी। और जो बाकी के जो 10 घोड़े बचे उसमें से 50% बेटे को दे दिए, 5 घोड़े बेटे को दे दिए। बेटा वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। एंड देन अगेन एवरीबडी गॉट इन टू अ प्रॉब्लम बिकॉज नाउ what happened, what remained was 5 horses. And again, to divide those 5 horses equally between the 2 nephews of the old man, how do you do it? So everybody was again sitting on, holding their heads in their hands and wondering as to what to do. In the meantime, the old man, जो उनका दोस्त था, who came with 1 horse, he got up and he said, देखो बेटा, मेरा काम हो गया, अब मैं जाता हूँ। तो लड़के ने कहा कि बट अंकल, अभी तो प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करें, 5 घोड़े बचे हैं और उनको इक्वली कैसे डिवाइड करें दोनों नेफ्यूज में। ओल्ड मैन सेड, लुक सन, योर फादर वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आवर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रांग दैट वॉट बिलोंग टू मी बिलोंग टू योर फादर एंड वॉट बिलोंग टू योर फादर बिलोंग टू मी। These 5 horses still belong to your father. So what belongs to your father belongs to me. What I'm going to do, out of these 5 horses, I'm going to take 1. And he walked away with 1 horse. What remained behind? 4 horses. Those 4 horses were divided equally between the 2 nephews, and everybody was happy. Friends, this is the significance of numbers. This is the significance of finance. And this is how numbers are to be used for the purpose of finding solutions to different problems. Now, with this understanding, let us move forward and we come to our session, and we start with a quick recap as to what we have done. I hope all of you are able to see my PPT on your screen. Neeraj, can you please confirm? Yes, sir, I can. Okay, very good. So friends, let us have a quick recap and I will take all your questions also. तो कल हमने क्या डिस्कस किया? Yesterday we started our discussion and हमने चर्चा करी what is purpose of a business, and we very clearly understood purpose of a business is to create value by making profit, ethical profit, if I can qualify it. Purpose of a business
is to create value by making ethical profit, or you can also say purpose of a business is to make ethical profit by creating value. That's number one. And this is applicable all over the world. And as I said yesterday, groups like yours is a classic example, is an example that the world must follow as to how the businesses are started and how the business are to be run. They are run to create value. वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे, वैल्यू क्रिएशन का मतलब है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ. So just a minute, I suppose there is some technical hitch. Okay, are we connected? Yes. Okay, very good. So value creation का मतलब है to make this world a better place to live than what it was yesterday, and that is value creation. That means making things better for everyone than what they were yesterday. And then we were discussing how the decisions are taken in business and we understood it very clearly. All over the world, all the decisions which are taken are driven by this one single thing. Good decisions I'm talking about, the decisions of value creation that I'm talking about is whenever you have to take a decision, just ask yourself, if I take this decision, will it help me to create more value? If answer is yes, go ahead with that decision. If the answer is no, forget about that decision. And this is how the decisions are taken in the business all over the globe. And then thirdly, we discussed how the business empires are built all over the world. पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी business empires हैं, how they have become so big. And they have become so big by converting resources into result and result into resources. पहले पैसे से आपने प्लांट खड़ा किया और उस प्लांट से को आपने रन करके रिसोर्सेज जनरेट किए, वो रिसोर्सेज को वापस रीडिप्लॉय किया, एंड दिस इज हाउ यू कीप ऑन डूइंग इट. सो दिस इज हाउ द बिग बिजनेस एम्पायर्स हैव बीन बिल्ट एंड आर बिल्ट by continuously converting resources into result and result into resources. And we also understood, as the purpose of a business is to create value, what is your role and my role? And your role and my role is to help my business, to help my organization create more value. Help my organization create more value. So when I create more value, what happens? When I help my organization create more value, what happens? Remember, if I create more value, I become more valuable. And when I become more valuable, automatically I start getting more value for myself from everywhere. And that is what we discussed in the first place. Then we looked at कि ठीक है, business है, चालू किया है, तो उसका purpose है to create value by making profit, ethical profit. अब ये business profit कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए तीन चीज़ें जो हमको समझनी है, और वो है, वन इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फ्रेंड्स, व्हाट डज इट टेल अस? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमको क्या मालूम पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज माई इनकम एंड व्हाट आर माई एक्सपेंसेस. What is my income and what are my expenses? If my income is more, expenses are less, it is a good sign. It is a good sign. So that is because I have a profit. But if my income is less, expenses are more, it is a bad sign. And why it is a bad sign? Because I'm incurring losses. And in business, please remember, as we discussed yesterday, anyone who is in business has to make profit. Has to make profit. There is no choice. Profit is non-negotiable. So that is what we look at. That is what profit and loss tells us कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, अच्छा है कि बुरा है. कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम पड़ेगा कि आपकी इनकम ज़्यादा है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है. ऑब्वियसली इनकम हैज़ टू बी मोर ऑलवेज. So that is what the profit and loss will tell us. What balance sheet tells us, that is what we will discuss today. But at the outset, I can tell you, balance sheet हमको बताती है कि as a business, as Tata Motors, as Tata Group as a whole, what are my assets
and what are my liabilities. That is what the balance sheet tells me. And there are different kinds of assets, there are different kinds of liabilities that we need to understand, and we will understand it together. So that is your balance sheet. से आपको मालूम पड़ता है आपकी assets क्या क्या हैं और आपकी liabilities क्या क्या हैं, and that is what. And then you have a fund flow statement or the cash flow statement. Cash flow statement से आपको क्या मालूम पड़ता है? Cash flow statement से आपको मालूम पड़ता है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ से आ रहा है, और इससे मालूम पड़ता है कि ये कैश कहाँ पर जा रहा है. तो ये कैसे मालूम करेंगे कि ये कैश फ्लो अच्छा है या अच्छा नहीं है? सो इफ द कैश विच इज कमिंग इन द बिजनेस, ये जो इस कैश का यूज कहाँ हो रहा है? Are we using the cash which is coming in the business, or the funds which are coming in the business? Are we using those funds which are coming into the business for the purpose of creating more productive assets, for more productive purposes? That means company's fund flow or the cash flow is good. But अगर हमारे बिजनेस में जो कैश आ रहा है हम उसको wrongly यूज कर रहे हैं या डाइवर्ट कर रहे हैं to something which is not productive, that is a bad fund flow or bad cash flow. A business of this kind will not be able to survive for a long time. Now friends, समझ के लीजिए, all of you are engineers. Now there is something called neutron, proton and electron. In the domain of physics, there is something called neutron, proton and electron. And please remember, if someone understands what is a neutron or proton or electron, then with the understanding of these three things you can solve any problem in physics. Likewise friends, same is the case in the field of finance. If you understand what is P&L, if you understand what is balance sheet, if you understand what is a cash flow statement or the fund flow statement, it means you understand the electron, neutron and proton of financial accounting or the finance. And therefore, with the understanding of these three statements, you would be able to solve every problem in the domain of finance. And when I say every problem, friends, I really mean it. I really mean it. Because once you understand P&L क्या है, once you understand balance sheet क्या है, once you understand cash flow statement क्या है, fund flow statement क्या है, you will be able to solve each and every problem in the domain of finance, which I am sure would definitely happen. और हमको क्या करना है फिर? हमको ये समझना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना? उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? To find solutions to different problems in the domain of finance. And please remember, interestingly, finance is going to give solution to each and every problem, including the evaluation or appraisal or analysis of our vendors. So that is what will happen with the financial statement analysis, and that is also what we are going to cover together. Now उसके बाद में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एनालिसिस कैसे करी जाती है, एंड दिस इज द स्क्रीन दैट आई शेयर्ड विद यू. नाउ आप समझ के लीजिए, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, you understand today what is EBITDA, you understand today what is EBIT or EBT or EAT or cash profit or retained earnings, वो आप समझते हैं. अब प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो EBITDA है या ग्रॉस प्रॉफिट है या EBIT है या EBT है जिसकी हमने चर्चा कल करी, नाउ दीज आर नॉट नंबर्स, these are not numbers friends, these are your business drivers. These are your business drivers. समझ के लीजिए, that means what? That means Tata Motors, Tata Steel, all the group companies of Tatas, or all the companies all over the world. What are they doing? उनके जो मैनेजमेंट हैं, all the time, what are they working on? Constantly, every management of every organization in the whole world is constantly working on how to maximize my gross profit, how to maximize my EBITDA, how to maximize my EBIT, how to maximize my EBT, how to maximize my EAT. And therefore, please remember friends, so these are what? These are not numbers, these are the business drivers that drives all the businesses all over the world. और अगर मैं आपसे कहूँ friends, तो ये this is your career graph. ये जो स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, P&L आपके सामने, this is your career graph. And why do I say it is your career graph? Because as an executive working in a company, what I have to do, I have to see
एंड थिंक कि किस तरह से मेरे एक्शंस की वजह से मेरी कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट बढ़े, मेरी कंपनी की एबिटा बढ़े, मेरी कंपनी की ईबीआईटी बढ़े, मेरी कंपनी की ईबीटी बढ़े. एंड आई एम श्योर यू कैन वेरी इजीली इमेजिन इफ आई एम एबल टू contribute to the EBITDA, gross profit, EBIT, EBT of the company that I'm working for, my organization that I'm working for, what will happen? Obviously, I am helping my organization create value. And as I said earlier, if I create value, then what happens? I become valuable, and when I become valuable, then I automatically start getting value from everywhere. So this is what we discussed, this thing, and then we looked at the profit and loss statement. Now this is the profit and loss statement that we discussed yesterday. मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस से इसमें लेके जाना चाहूँगा. Then I will take all your questions and your doubt, and then after that we would continue. तो हमने कल देखा कि ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, रिमेंबर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इस तरह से कंपनियां प्रॉफिट एंड P&L बनाती हैं टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. तो जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, उस एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है. तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसका ये फॉर्मेट है. और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ये शेयर होल्डर्स के पास में नहीं जाता है. दिस इज फॉर द इंटरनल रेफरेंस बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये शेयर होल्डर्स के पास में नहीं जाएगा, ये हम खुद बनाएंगे. क्योंकि ये हमको क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको डिसीजंस लेने हैं, हमको स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी है कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाया जाए, किस तरह से एबिटा बढ़ाया जाए. सो दिस इज प्योरली फॉर द इंटरनल रेफरेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. एंड ये जो P&L है, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग टू द shareholders. Now both these copies that I am sharing with you on the screen are also available in the workbook that I have shared with you. Now so let us look at, क्योंकि हमको ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे हमारे वेंडर्स की, उस समय हमको ये नंबर्स यूज करेंगे हम. तो अच्छा हो कि अभी हम समझ जाएं कि कौन सा नंबर कहाँ पर आ रहा है, तो कि सो दैट जब आप एनालिसिस करेंगे यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस. इसका मतलब क्या है कि टाटा मोटर्स हैं, तो वो जो उनकी जो टाटा मोटर्स की जो इनकम है फ्रॉम द सेल ऑफ द व्हीकल्स एंड फ्रॉम द सेल ऑफ द सर्विस स्पेयर पार्ट्स और द सर्विस, दैट इज योर रेवेन्यू. सो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस में वो आ गया from the sale of the vehicles and from the sale of the spare parts and things like that. That is part of the revenue from the operations. Other income में क्या है? टाटा मोटर्स के पास में they must have made some investment into the shares and debentures and different securities, because sometimes as a business we also have to do a treasury management. ट्रेजरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर कभी हमारे पास में कोई सरप्लस पैसा पड़ा है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको वो सरप्लस पैसा बैंक पे रखना चाहिए? अगर बैंक पे रखेंगे तो बैंक से तो 10 पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो करंट अकाउंट में है. सो अगर हम हमारा सरप्लस पैसा बैंक में रखेंगे विच इज़ नॉट अर्निंग अस इवन ए सिंगल पैसा, इज इट ए गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन? ऑब्वियसली इट इज़ अ बैड डिसीजन. तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सरप्लस पैसा है हमें देखेंगे कि कितने समय के लिए है, तो हम उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे. उससे क्या होगा? उससे हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ ना इंटरेस्ट मिलेगा या कुछ डिविडेंड मिलेगा. तो दैट कम्स एज पार्ट ऑफ योर अदर इनकम. सो ये जो है ये आपकी अदर इनकम विल कम हियर. सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू का जो फिगर आ गया. अब आप क्या करेंगे? आपके रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से आप माइनस करेंगे आपके खर्चे. कौन कौन से खर्चे? पहला खर्चा है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. राइट, सिंपल है. जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं और जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी मटेरियल कॉस्ट होती है. नाउ रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट इज नॉट द मटेरियल दैट वी हैव परचेज्ड. मटेरियल कॉस्ट इज मटेरियल दैट वी हैव कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ द रॉ मटेरियल माइनस द क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड इन द ऑपरेशंस. सो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नाउ आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पर ये 00 लिखा हुआ है, क्योंकि ये जिस वेंडर की ये नंबर हैं, जिस कंपनी के नंबर हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो कंपनी ट्रेडिंग में नहीं है.
तो ये जो आइटम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये आइटम का फिगर कब आएगा? ये आइटम का फिगर तभी आएगा जब वो कंपनी ट्रेडिंग करती हो। अगर वो कंपनी ट्रेडिंग नहीं करती है तो द कंपनी इज नॉट परचेजिंग एनी मटेरियल फॉर द परचेज ऑफ ट्रेडिंग, एंड दैट इज व्हाट इज कमिंग 00। अब एक चीज और समझ के लीजिए, ये जो 00 आ रहा है, क्यों 00 आ रहा है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इट हैज टू बी यूज्ड एज इट इज। तो आपके पास में कोई लाइन का फिगर हो या ना हो, लेकिन वो आपको लाइन दिखानी है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट वी फॉलो इन दिस country, and that is why this figure is 00. So for our working future working हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद में है चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब इसको समझ के लीजिए, इसका क्या मतलब है। इसका देखिए, आपकी इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट्स हैं प्राइमरीली। किसी भी बिजनेस में इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट्स हैं प्राइमरीली। पहला कंपोनेंट कौन सा है? पहला कंपोनेंट है रॉ मटेरियल। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? finished goods, isn't it? So these are the 3 components of the inventory, any business that we have anywhere in the world. अब जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो तो यहाँ पर आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बचे कौन से? बचे वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अब उसकी भी अकाउंटिंग होनी है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपने जो प्रोड्यूस किया, जो आपने वर्क इन प्रोग्रेस प्रोड्यूस किया और जो आपने फिनिश गुड्स का जो प्रोडक्शन किया वो साल में, वो पूरा के पूरा बिका हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। तो समझो आपने 100 करोड़ का आउटपुट किया और उसमें से 90 करोड़ का आउटपुट आपने सेल किया, 10 करोड़ का आउटपुट आपके पास में बचा रहा। सो वो जो 10 करोड़ है, इट विल कम एज चेंजेस इन इन्वेंट्री एज ए नेगेटिव फिगर। रिमेंबर, इट इज कमिंग एज ए नेगेटिव फिगर बिकॉज दिस इज, आपने मटेरियल कॉस्ट को अकाउंट फॉर किया, तो ये जो फिनिश गुड्स है, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया है उसको आपने कॉस्ट करके दिखा दिया ऑलरेडी यहाँ पर इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन वो जो मटेरियल आपने यूज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आई विल आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके। Is the problem with me only or all participants are also having issue? Sir, we have an issue in the voice. Same issue. Yeah, voice yes. ओके, सो Voice is breaking. I think sir आप अपना वीडियो रोक के ऑडियो पे जा सकते हैं। ओके, So that bandwidth. श्योर, आई विल डू दैट। And sir, I request please again write a change in inventory Okay, because we can't properly hear you. No The problem. change in inventory. sure, I think from last 5 minutes we need to repeat it later. I think. sure. And Neeraj, thank you so much for आप ऑडियो पे चले जाइए शायद। yes, Neeraj, I am now only on audio. मैंने वीडियो मेरा म्यूट कर दिया है। आई होप इट इज Sir, now voice is clear. ओके। I think let's start from the beginning. Change of inventory जहाँ पे बोल रहे थे वो proceed. Yes, and Neeraj, thank you so much for reminding me. Whenever you face any of this challenge, please do mention, and I would do the needful in any case. Okay. Very good. Fine. So yes, are you able to see it on the screen? All of you, Neeraj, is it visible? Is my PPT visible on your screen? Yes, yes. Okay, thank you. BCD limited loss Yeah, for that's the year ended 31st March. perfect. Okay, so cost of material consumed, I suppose, is clear to everyone. This cost of material consumed is clear to everyone. Neeraj, was it audible clearly when I spoke about cost of material consumed? Yeah, this Okay. time is better. Okay, good. Okay, now we look at the changes in inventory. इसका क्या मतलब है? So please remember, in any business, in any manufacturing business, anywhere in the world, inventory will comprise of 3 components primarily. So number 1 is raw material. Number 2 is work in progress. So work in progress, that means raw material which has been taken onto the shop floor and which is
partly manufactured, which is in the semi-manufactured state, and that is your work in progress. And third component of raw material is your finished goods. As the finance or as the financial accounting, it is our obligation. And what is the obligation? The obligation is we have to record or account for every expense or every income correctly and accurately. तो हमने क्या किया, जो 3 कंपोनेंट हैं इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल, उसको तो हमने अकाउंट फॉर कर लिया. कैसे कर लिया? हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक plus the purchases during the year minus the closing stock. The balancing figure is the material cost of material consumed. Now, the material that we have consumed and taken as cost of material consumed, some of this material is still lying with us. And where it is lying with us? It is lying with us in the form of work in progress. It may also be lying with us. वॉइस ठीक नहीं है. Uh-huh. Okay. Let okay. Let me just wait for a few seconds. If it improves, else maybe I can change my location. Is it okay now, Neeraj? Yeah, no. Okay. So in case if it happens again, then I will shift to another location in my same place, and I'm sure it should become better in that case. Okay. So let me come back to once again. So we are talking about the 3 components of inventory, and 3 components of inventory. Number 1 is the raw material, number 2 is the work in progress, and number 3 is it finished product or finished goods. We have done the accounting of raw material as here in this line, cost of material consumed. Now, what about the remaining 2 items? The remaining 2 items is work in progress and the finished goods. It is possible that the raw material cost that we have taken here, some of this material is already lying with us. Where? It is lying with us in the form of WIP, in the form of finished goods. And therefore, though we have recorded this as a cost of material consumed, but if it is still lying with us, that means it has to be accounted properly. So what we do for that? For that we will have an item called change in inventory. Change in inventory का मतलब क्या है? Change in the value of finished goods and change in the value of work in progress of that year. So say for example, if we have produced goods worth 100 crore, we have produced goods worth 100 crore, and out of this 100 crore, 90 crore worth of goods have been sold. So that is accounted for in the income. 10 crores worth of goods, finished goods, are still lying with me. So that means सर इसमें माइनस फिगर कैसे आ सकता है? I'm minus means it is an income, Neeraj. See, minus means it is an income, and that is what I am coming to. So just pay attention once again. रॉ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट फॉर किया. रॉ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट फॉर किया मतलब क्या है? मतलब कि उस रॉ मटेरियल में मटेरियल फॉर विच वी हैव प्रोड्यूस द गुड्स एंड सोल्ड हैज कम, एंड इन द सेम मटेरियल कॉस्ट मटेरियल विच इज लाइंग विद अस in WIP and in finished goods, that is also included. Now this material which we have used as the material cost, it is still lying with us, and if it is still lying with us, then really speaking it is not our income, it is not our expense. So it has to be reversed, and please pay attention, it has to be reversed. That means it has to be shown as an income. And how do you show it as an income? And just ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ का आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, 90 करोड़ का आपने गुड्स सेल कर दिया. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है, इट हैज इंक्रीज बाय 10 करोड़. सो अगर आपकी इन्वेंट्री 10 करोड़ से बढ़ गई, इज इट एन इनकम फॉर यू और इज इट एन एक्सपेंस? इट इज एन इनकम फॉर यू, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, यानी कि आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई बाय 10 करोड़. दैट मीन्स दिस 10 करोड़ इज सपोज टू बी योर इनकम. एंड उसको हाउ डू वी शो इट? सो वी, बिकॉज it is not your revenue, but it is a gain for you in a business.
And how do you show it? You show it by a negative figure. So when you see this figure 10.71 crore or this figure of 10.71 crore that you see here, नीरज, ये जो 10.71 करोड़ का जो नेगेटिव फिगर दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी ने 110 करोड़ का गुड्स प्रोड्यूस किए ये साल में 2021 में 110 करोड़ के फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए और उसमें से 100 करोड़ के जो गुड्स थे वो मार्केट में सेल कर दिए, यानी कि वो आपकी इनकम में यहाँ पर आ गए। और ये जो 10 करोड़ 10.71 करोड़ का जो सेल नहीं किया है, दैट मीन्स उतने से उनकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बढ़ गई। सो दिस इज टेकन हियर एज ए नेगेटिव फिगर। दैट मीन्स मैंने जो यहाँ मटेरियल कॉस्ट लिया हुआ है, द मटेरियल कॉस्ट दैट आई हैव टेकन हियर, if I understand correctly, हाँ हाँ, say number this is 2020 and 2021, right? यस, तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री लिखा है। जैसे मान लो मार्च 2020 में उनके पास में 100 करोड़ की इन्वेंट्री थी, 100 करोड़ का जो सेल किया, अभी जो यहाँ पे इन्वेंट्री आ रही है वो 90 करोड़ की आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली, 10 करोड़ एब्सोल्युटली, वेरी राइट year on year? यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, Okay. दैट्स करेक्ट। सो ये जो आपने मटेरियल कॉस्ट लिया है, उस मटेरियल कॉस्ट में से दो चीज़ें हुई, एंड प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, टू थिंग्स हैव हैपेंड। You have taken a material cost, and we can take this example itself. You have taken a material cost of 677 crore. 677 करोड़ की आपने मटेरियल कॉस्ट ली है। ये मटेरियल कॉस्ट कहाँ पर यूज हुई है? ये मटेरियल कॉस्ट दो जगह पर यूज हुई है। एक जगह कौन सी है? एक जगह द गुड्स दैट यू हैव सोल्ड ऑलरेडी, वहां पर ये मटेरियल यूज हुआ है, तो उसकी तो इनकम आपकी यहां पर आ गई, दैट इनकम हैज कम हियर बिकॉज यू हैव सोल्ड इट, सो दैट इनकम इज कम हियर। और दूसरा ये मटेरियल कॉस्ट कहां पर गई है? दूसरा ये मटेरियल कॉस्ट आपके शॉप फ्लोर पे गई है और आपके वेयर हाउस में गई है, जहां पर कि आपकी WIP इंक्रीज हो गई है और आपके फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री वो इंक्रीज हो गई है। अब आपने कॉस्ट तो यहाँ पे ले ली, लेकिन मटेरियल तो आपके पास में ही है। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आपको वो जो कॉस्ट आपने ली है उसको करेक्ट करना जरूरी है। तो जितने से आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री वो साल में बड़ी होगी और जितने से आपकी WIP की इन्वेंट्री बड़ी होगी, दैट इज योर increase change in the inventory, and the change in the inventory, if it is positive, then this figure is going to be negative here, and if it is negative, then of course then it is going to be part of your material cost in any case. So this is the reason as to why you will see this figure as negative everywhere. I hope that explains. Gopeshwar here, sir. Can I show? Hello, Gopeshwar here, sir. Yes, please. Can you say that the cost of material consumed, whatever written there, that is the material value of the material, whatever you have procured in this financial year, Right. and that is change in inventory. Change in inventory is the whatever material lying at our plant, and if we minus from that consumed minus lying at plant, that is the cost of goods sold. No, you are absolutely close to it. You are absolutely close to it. मैं एक बार थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। रॉ मटेरियल के 3 कंपोनेंट हैं, सॉरी इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट हैं, है ना। इन्वेंट्री के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है योर रॉ मटेरियल, ठीक है। और अपने को क्या करना है? इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी कॉस्ट करेक्टली। अब जरा ध्यान दीजिए, तो मटेरियल कॉस्ट आप कैसे वर्कआउट करेंगे? ये जो मटेरियल कॉस्ट आपकी यहाँ पर आप ले रहे हैं, व्हाट यू आर टेकिंग हियर, हाउ डू यू वर्क दैट मटेरियल कॉस्ट, हाउ डू यू फाइंड आउट दैट मटेरियल कॉस्ट? एंड प्लीज पे अटेंशन, ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ द रॉ मटेरियल प्लस द परचेजेस ऑफ द रॉ मटेरियल इन दैट ईयर minus the closing stock at the end of the year. So the differential figure is your material cost. ठीक है। अब ध्यान दीजिए, the differential is your material cost. लेकिन ये जो आपने मटेरियल कॉस्ट का जो फिगर लिया है 677 करोड़ का, ये जो आपने मटेरियल कंज्यूम किया है, ये दो जगह पर इसका गया है। कहाँ गया है? एक तो ये मटेरियल कॉस्ट वहाँ चली गई जो आपने गुड्स बना के बेचे, तो जो गुड्स सोल्ड किए हैं वो पार्ट ऑफ दिस मटेरियल कॉस्ट हैज गॉन देयर। ओके, नाउ पार्ट ऑफ दिस मटेरियल कॉस्ट
is still lying with you in the form of work in progress, in the form of finished goods. तो यानी कि अगर वो आपने एक जगह उसको खर्चा करके ले लिया लेकिन वो एसेट तो भी आपके पास में ही है, इसका मतलब रियली स्पीकिंग वो खर्चा आपका भी हुआ नहीं है, लेकिन आपको चूंकि अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है तो आप कैसे उसको अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे? आप उसको जो भी आपका मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में गया है या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में गया है वो साल की, दैट कंपोनेंट यू विल शो हियर एज चेंजेस इन इन्वेंट्री एज ए नेगेटिव फिगर. इफेक्टिवली अब समझ के लीजिए इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, प्लीज पे अटेंशन. इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि 677 minus 10.71 is your actual material cost of that year. I hope that makes sense to all of you. Yeah, sir. है ना? Okay. I've got it, sir. एक प्रश्न था सर. Please go ahead. हेलो सर, प्रकाश बोल रहा हूँ. Yes, Pratap. सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हम्म. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हम्म. 670 करोड़ है. हम्म. तो 670 करोड़ में जो प्रोडक्शन हुआ हम्म. लाइन पे हो, वर्क इन प्रोग्रेस से या जो मटेरियल फिनिश गुड ऑलरेडी प्रोड्यूस हुए हैं, हम्म. तो वो सब तक 670 करोड़ में नहीं आया, क्योंकि 670 करोड़ में से ही वो सब फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस बन रहे हैं. एग्जैक्टली. मैन्युफैक्चरिंग. बिल्कुल बिल्कुल. प्रताप ना, प्रताप. प्रकाश सुनेगा. ओके, हाँ प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो. अब खाली इसको थोड़ा सा ये समझ के लो कि ये जो 677 है ना, ये आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई, ये आपके साल की टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई. लेकिन इसमें से पार्ट ऑफ द मटेरियल आपने सेल कर दिया. जो आपने सेल कर दिया वो तो आपका खर्चा हो गया, पक्की बात है, क्योंकि आपने उसकी इनकम बुक कर ली. इनकम बुक कर ली तो ऑब्वियसली जो आपने सेल किया वो आपका खर्चा हो गया. प्रमोद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके नीरज, व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दी. Prakash, are you hearing the voice of Pramod sir? Yeah, is there there is a problem of breaking. आई सी. Okay. ओके. सर, इसका मतलब ऐसा हो गया कि we have bought material of 677 crores हम्म. and we have used 667 crores in No, the production. no. Okay, let me explain this way. आपका ओपनिंग स्टॉक था 100 करोड़ का, है ना? आपका ओपनिंग स्टॉक था 100 करोड़ का और आपने परचेजेस करी 800 करोड़ की. कितना हो गया? 900 करोड़ हो गया. ये सिर्फ रॉ मटेरियल के बारे में सर आप बात कर रहे हैं. रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं. ओनली रॉ मटेरियल, Only raw material. ओनली रॉ मटेरियल, है ना? तो 100 करोड़ का आपका ओपनिंग स्टॉक था और 800 करोड़ की आपने नई परचेज करी. टोटल कितना हो गया? 900 करोड़. 300 करोड़ आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 600 करोड़. 600 करोड़. 600 करोड़, ठीक है. अब ये 600 करोड़ का जो कंजम्पशन है ये कहाँ पर गया? पार्ट ऑफ दिस 600 करोड़ हैज गॉन इनटू द गुड्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड एंड ऑलरेडी सोल्ड टू कस्टमर, एंड पार्ट ऑफ दिस 600 करोड़ इज लाइंग विद यू इन वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन फिनिश गुड्स. सो ये जो आपका मटेरियल सेल होके चला गया वो तो ठीक है, लेकिन आपने 600 करोड़ का जो कॉस्ट, ये जो 600 करोड़ का आपने यहाँ जो कॉस्ट ले ली, एंड प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, 600 करोड़ का जो आपने मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे ले ली है, यानी कि आपने 600 करोड़ का खर्चा दिखा दिया है. लेकिन ये 600 करोड़ में से 10 करोड़ का मटेरियल तो अभी भी आपके पास में पड़ा है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड. है ना? तो अब उसको आप माइनस करोगे तो आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? 600 करोड़ माइनस 10 करोड़. एंड वो उसको क्लियरली दिखाने के लिए कि भाई क्या पोजीशन है, दैट इज द रीजन व्हाई ये आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दिखाते हैं और यहाँ पर जो आपके पास में पड़ा हुआ है वो यहाँ पर माइनस करके दिखाते हैं. माइनस का मतलब ये हो गया कि 6, है ना? ओके, गुड, वेरी गुड. प्रमोद सर,
हाँ, यस यस प्लीज। सर अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की जगह अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएंगे, इसका मतलब उस केस में हमें चेंजेस इन इन्वेंट्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ओके, दैट्स राइट। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके दिखाओगे तो फिर आपको WIP और फिनिश्ड गुड्स को अलग से अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऑलरेडी अकाउंट हो जाएगा। एंड यू आर राइट, यू आर राइट, बट द ओनली पॉइंट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, बट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हाँ उसमें कॉस्ट ऑफ गोल्ड के कंपोनेंट दिखाए जाते हैं। हाँ, कोई भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अगर उठा के देखेंगे मनी कंट्रोल से या फिर जो भी साइट्स है उसमें उसका ब्रेकअप आता ही आता है। एब्सोल्युटली धीरज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि ये फॉर्मेट जो आपके सामने है स्क्रीन पर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना ही करना है। एंड दैट इज व्हाई आप किसी भी कंपनी का आप उठा के देखेंगे तो आपको यही फॉर्मेट सब जगह पे दिखाई देगा। ओके, सो गुड, बट yes. This amount is better for the organization, no? it is better for Only organization. the profit. Yes, of course. This is better for the organization. This is better for the organization because this is kind of an income which is available with you. Only thing is, and all of you please pay attention. Only thing is, ये जो माइनस का फिगर है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड समझ के लिए लीजिए क्यों मैं कहता हूँ कि ये माइनस का जो फिगर है 10.71, ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब प्रोड्यूस तो बहुत किया है साल में, लेकिन पूरा ज़्यादा सेल नहीं हुआ है, काफ़ी सारा फैक्ट्री में ही पड़ा है, एंड दैट इज़ अ बैड साइन। सो इफ दिस फिगर इज इन नॉमिनल, इट इज़ ओके। इफ दिस फिगर इज टू लार्ज, it means that the company is building more inventory, either in the form of WIP or in the form of finished goods, which is a bad sign. I hope that makes sense to all of you. Anyone can please confirm? Okay, good, very good, Yes. very Yes, good, sir, yes. very good. Sir, is there any percentage how much to be retained in the finished good or something? उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इट शुड बी ज़ीरो। योर एम एंड ऑब्जेक्टिव, आवर एम एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी टू मेक इट ज़ीरो। एंड समझ के लीजिए क्यों, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अगर ये ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो भी मैंने प्रोड्यूस किया वो सारा के सारा मैंने सेल कर दिया, और सारा के सारा सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कस्टमर से के पास से मेरा पैसा वो आ गया है एक्चुअली। अगर वो ये फिगर पॉजिटिव, अगर ये फिगर नेगेटिव दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा इन्वेंट्री में अटका पड़ा है, इसका मतलब मेरा पैसा WIP में अटका पड़ा है। और ये फिगर अगर ज़ीरो है, इसका मतलब मैंने जो बनाया वो सारे के सारा सेल कर दिया। एंड आई कैन टेल यू दी कंपनी विल बी दी हैप्पीएस्ट इन दैट केस, कि जो बनाया वो सारा सेल कर दिया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो एज ए फिलोसफी, एज ए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट वुड ड्राइव ऑल ऑफ अस, कि भाई जो बनाए हैं उसको पूरा सेल करो, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बचेगा, यू कांट रियली हैव ए सिचुएशन वेयर योर इन्वेंट्री, योर फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री और WIP हैज बिकम जीरो। इट विल नेवर बिकम जीरो। ओनली थिंग इज, अब आपका जो सवाल है मैं समझ गया कि भाई ये कैसे मालूम करें कि ये फिगर सही है कि नहीं है, मतलब ये ठीक है कि नहीं है। अब उसके लिए आप क्या करिए, दो काम कर सकते हैं आप उसके लिए। एक तो लास्ट ईयर के फिगर से कंपेयर करिए कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये फिगर, जो नेगेटिव फिगर है, वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में ये फिगर कम हुआ है, इट इज़ ए गुड साइन। अज्यूमिंग के लास्ट ईयर का जो आपका सेल है और प्रोडक्शन है, और इस साल का जो प्रोडक्शन है वो सेम है, और ये फिगर कम हुआ है, इट्स ए गुड साइन। लेकिन आपका लास्ट ईयर का प्रोडक्शन और लास्ट ईयर की सेल और इस साल का प्रोडक्शन और इस साल की सेल लास्ट ईयर के बराबर ही है, तो और ये फिगर अगर नेगेटिव है और बढ़ गया है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग इन्वेंट्री in the WIP or in finished goods. That is not a good sign. I hope that पॉजिटिव भी होता है क्या? ये फिगर नीरज पॉजिटिव भी हो सकता है, which and that is understand वो कब होगा? All of you please pay attention. ये फिगर नेगेटिव कब होगा? ध्यान से सुनिए। ये फिगर नेगेटिव कब होगा? जब आपने प्रोड्यूस 100 करोड़ का किया और सेल आपने 90 करोड़ का किया, तो ये फिगर नेगेटिव होगा।
है ना, क्योंकि नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपने 100 करोड़ का माल बनाया, 90 करोड़ का बेच दिया और 10 करोड़ का आपके पास में बचा है, इसका मतलब आपकी चेंज इन इन्वेंट्री इज बाय 10 करोड़, तो ये फिगर नेगेटिव हो गया। ये फिगर पॉजिटिव भी हो सकता है नीरज, और कब होगा, एंड सुन के लीजिए, आपने 100 करोड़ का माल बनाया और 120 करोड़ का आपने बेच दिया, तो ये फिगर पॉजिटिव होगा। अब आप बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन है तो 120 करोड़ का कैसे बेच सकते, या 100 करोड़ का आपका प्रोडक्शन है तो 120 करोड़ का आप कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि जो 20 करोड़ जो आपने एक्स्ट्रा बेचा वो आपका जो ओपनिंग स्टॉक था WIP का या फिनिश गुड्स का, उसमें से बेचा। So that means then this figure will be negative, and which is a good sign. And why it is a good sign? Because you are selling then what more than what you are producing. आपने उसको भी पॉजिटिव आ जाएगा फिगर। Absolutely, Neeraj. That's perfect. That's absolutely perfect. Absolutely perfect. तो उस केस में ये फिगर पॉजिटिव होगा, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज आपकी इन्वेंट्री क्लियर हो रही है, आपकी ओपनिंग जो इन्वेंट्री थी वो क्लियर हो रही है, विच इज अ गुड साइन। In this case, we are building up the inventory, sir. In this case, you are building up the inventory. In this case, you are building up the inventory. अब ध्यान से सुनिए सभी लोग। So long as this figure is more or less around the same number that you see on the screen, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फिगर ओवर द ईयर्स बढ़ना शुरू हो जाए या किसी साल में अचानक से बढ़ना शुरू हो जाए, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई इन्वेंट्री बिल्ड हो गई है, उसको क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि इन्वेंट्री बिल्ड, प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब हायर इन्वेंट्री इज खाली एक नंबर नहीं है। अगर मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई तो ये नहीं एक नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। एंड समझ के लीजिए ऑल ऑफ यू, बिकॉज हम लोग फाइनेंस और नॉन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, समझ के लीजिए अगर मेरी इन्वेंट्री 10 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गई, ये खाली नंबर नहीं है कि 10 करोड़ का 50 करोड़ हो गया। जो 40 करोड़ से मेरी जो इन्वेंट्री बढ़ गई उसके ऊपर मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बिकॉज आई मस्ट हैव टेकन अ लोन। और वो जो 40 करोड़ की इन्वेंट्री बढ़ गई, उसमें पिलफरेज हो सकता है, उसमें ऑब्सोलिसेंस हो सकता है, उसमें फेजिंग आउट हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ बैड साइन. So as a management part of the management team, as the professionals, as the executives of the company, our thought process should always be कि किस तरह से इन्वेंट्री को मैं कम करूं. हम लोग जब वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्वेंट्री को कम करूं, वो हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए. तो जब तक ये फिगर जो 10.71 का आपको यहाँ दिख रहा है, ये उसके आसपास में है, कोई परवाह नहीं. अगर बढ़ गया किसी साल में अचानक से, देन मैनेजमेंट हैज टू टेक अ कॉन्ग्रेजेंस ऑफ इट एंड टेक सम करेक्टिव एक्शन. गुड. उसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट्स मैंने कल एक्सप्लेन किया है, फाइनेंस कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी सारे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया है पूरी तरह से. तो अब हम इसको यहाँ से निकल सकते हैं और अब मैं आपके जो क्वेश्चन है वो ले लूँगा. सो समबडी वाज आस्किंग इन द मॉर्निंग, देयर वाज अ क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट इट क्विकली? योर क्वेश्चन वाज दैट टाटा मोटर्स हैज रिटर्न ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, right? Write off. So what is the meaning of write off, and where it is write off? So where it is taken into account? अब देखिए, write off can be of many items. Say for example, आपके डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, है ना, और वो जो डेटर है वो पिछले 2 साल से उसका पेमेंट नहीं आया है. समझो 2.5 लाख का अमाउंट है. जानबूझ के कम अमाउंट बोल रहा हूँ क्योंकि राइट ऑफ की अमाउंट हमेशा कम से कम होनी चाहिए. हमको राइट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और कभी पड़ी तो अमाउंट कम से कम होना चाहिए. तो 2.5 लाख का एक अमाउंट है, एक कस्टमर को गुड सेल किया था और 2.5 साल हो गया, उसका पेमेंट नहीं आया है, और बाद में मालूम पड़ा कि वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई. तो अब ये जो 2.5 लाख का जो हम रिसीवेबल दिखा रहे हैं हमारे बैलेंस शीट में, वो 2.5 लाख हमको आने वाला तो है नहीं. अब आने वाला तो नहीं है, तो फिर उसको बैलेंस शीट में दिखा के कोई मतलब नहीं है. क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि हम 2.5 लाख हमारे एसेट्स को दिखा रहे हैं, पर वो एसेट्स एक्चुअल में तो आने वाले नहीं हैं.
वो एसेट्स एक्चुअल में तो आने वाले नहीं हैं, तो यू राइट इट ऑफ. सो राइट इट ऑफ, दैट मीन्स राइट इट ऑफ एज अ बैड डेट एक्सपेंस. आर यू विद मी? आर यू फॉलोइंग मी? तो वो बैड डेट एक्सपेंस करके आपके बुक्स में आ जाएगा. इट विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. सेल्स रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन योर P&L एज एन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस. आर यू विद मी एवरीवन? जिनका ये क्वेश्चन था. Yes, sir. Thank you. Okay, so that is one example of write-off. Second example of write-off can be of an asset also. So आपके पास में एक प्लांट एंड मशीनरी है और वो आपकी बुक्स में आज की तारीख में आप उसको बुक्स में दिखा रहे हो एज 20 करोड़, है ना. 20 करोड़ से वो दिख रही है आपकी बुक्स में. यू आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट रेगुलरली, नो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट फॉर सम रीज़न ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यू सडनली हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़ टू 10 करोड़. यानी कि ये जो एसेट है उसकी वैल्यू 10 करोड़ से कम हो गई. तो अब ये भी आपको बुक्स में लेना पड़ेगा P&L में एज एन एक्सपेंस, एंड दिस यू विल टेक एज ए इम्पेयरमेंट कॉस्ट. इम्पेयरमेंट कॉस्ट यानी कि प्लांट एंड मशीनरी है और उसकी कीमत 20 करोड़ थी,